Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss here a very important topic, and that topic is Kirchhoff's laws. In fact, these two laws, we can use these laws even in complicated circuits for the calculation of currents and voltages wherever networks are very complicated. Dear students, where there is failure of the laws of combination of resistors, that is parallel law of combination, and series law of combination of resistors, which fails to give the currents, values of currents and voltages there in the complicated circuits, then there is the beginning of Kirchhoff's laws in the form of two laws. These laws, one law is current law, and dear students, the second law here is loop law. This law can even be utilized or used there in the electrical circuits, rather we can use these in electronic circuits, semiconductor devices, and it has so many applications there in the electricity and magnetism. So I am going to start here the topic. Hope you will listen and enjoy the topic, dear students. Okay, very nice. Now I am starting the laws here, that is Kirchhoff's laws, which are utilized for complicated circuits, even to find that, to determine, to calculate the voltages and electric currents there in any part of the complicated network. Okay, now let us start here the first law. What is the statement for first law? These laws were given in 1845 and 1846 by Kirchhoff, who belongs to Germany, and he gave these two laws when he was just a student. See the caliber of the student. Now, the laws that he gave here, I don't have to discuss here the history of the scientist. I am going to my point, and my point is simply what are the laws given by Kirchhoff. Kirchhoff gave two laws, and Kirchhoff gave two laws. The first law here is, dear students, current law, and the next law that I am going to discuss here is voltage law. Now, what is current law first of all? What is current law? First law is known as current law. This is first law here, my dear students. According to this, the statement for this law, what is the statement for this law? This current law is also known as junction law. It is also known as junction law. Current law is also known as, dear students, it is also known as junction law. I will tell you about this junction. What is the meaning of junction, dear students? See, dear students, what is the meaning of junction? I will also make clear this thing to you. Statement K. What is statement for this current law? The statement here is like this, dear students. It states that according to this law, the current is approaching, the total sum of current is approaching, the total current is approaching, the total current is approaching a junction. Approaching a junction is equal to the total current is leaving from the junction. Total current is leaving from the junction. Leaving from that junction. See dear statement क्या लिखा? According to this law, the total current is, electric current is approaching a junction is equal to the total current is leaving from the junction. I will make this thing clear to you. See dear students. See dear. Suppose यहाँ मैंने एक point ले लिया. What is junction? Junction. First of all, let us try to understand what is the meaning of junction. Junction is a point, dear students, where a number of conductors meet, where a number of resistors or conductors meet. See dear, let us take this one conductor, and let us take this another conductor. Let us take this another conductor. I am taking three conductors here. Let current flowing through these here. In the first conductor, let us current here is I1, and here is I2, and here is I3. The meeting point of all the three conductors, where the three conductors are joined together, is known as a junction.
So this point here is, that is O point is, O is junction. O is junction because it is the meeting point of a number of conductors. And meantime I am saying, let us consider that current through this conductor is I1 and conductor through this I2, और इस conductor में current जा रही है I3. These three conductors are joined here, and here this point is known as junction. So these three currents are approaching to the junction along the three conductors. Let us say that these along, this is one more conductor connecting to the same junction and another conductor here. Let current go is leaving from the junction here along this conductor I4. Let us say magnitude of the current is I4, and here it is I5. See here. Now what this statement says, what is the mathematical statement of this? The total currents that are approaching to the junction is equal to the total currents that are leaving from the junction. Here junction is the meeting point of all these conductors. Hope you have got the junction, and meantime you have got the statement for first law given by Kirchhoff, and that is known as junction law, or that is known as current law. Therefore I can write this like I1 plus I2, mathematically क्या लिखेंगे, I1 plus I2 plus I3, these are the currents approaching, must be equal to I4 plus I5 according to Kirchhoff's law, and these currents, these are approaching, sum of currents approaching, and these are the sum of currents leaving from the junction. So the currents approaching to the junction are equal to the currents leaving from the junction. This is the statement. This is the statement for Kirchhoff's first law. In fact, this law is based on the law of conservation of charge. See, what does it mean? In other words, I can write this like, in other words, total sum of currents at the junction is 0. ये भी statement है. Total, another statement, alternate statement, total sum of electric currents, algebraic sum of electric currents, at point O is junction is 0. At point O is 0. When O is junction, that is sigma I. Sigma I is 0. Sigma I is 0. ये भी इसका statement है. देखो क्या है? Sigma I is 0. What does it mean, sigma I? That means I1 plus I2 plus I3 plus I4. देखो क्या है, ऐसे लिखेंगे. ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट. टोटल सम ऑफ करंट्स इज 0 at this point. See what is the mean? This and this are same. See, the currents that are approaching to the point is equal to the currents that are leaving from the point. So the total current क्या है इस पॉइंट पर? 0. क्यों? क्योंकि जितनी करंट यहां से आई इसी टाइम, इतनी ही जितनी चार्ज बिकॉज करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर इन टाइम, जितनी चार्ज फ्लोइंग पर इन टाइम यहां आई, इतनी ही टाइम में चार्ज यहां से लीव हो गई. तो व्हाट इज द नेट चार्ज एट दिस, व्हाट इज द नेट करंट एट दिस पॉइंट? तो सिग्मा आई इज 0. That means the total current is approaching this is equal to the total current is leaving. So what is the net current? What is the net charge per unit time at that time? That is 0. Because the currents that are coming same time the currents are leaving from the junction. So net current here is 0. So how I can write this? I can write this like this. See, I1 plus I2 I3. अब ये क्या लिखेंगे? इसको इस साइड में लाएंगे. Minus I4 minus I5 is equal to 0. This is the statement for this. So what I have concluded here. So a sign convention, we have to follow a sign convention. बेटा हमको एक sign convention follow करनी है, और sign convention क्या है? The currents that are approaching to the junction are taken to be as positive, and the currents that are leaving from the junction are taken to be as negative. Then their total sum at the junction is equal to 0. Or the alternate statement for this is that the total current is approaching is equal to the total current is leaving at the point at the junction, and that is alternate statement for Kirchhoff's first law, that is current law, junction law. Hope you have got this. क्या सिग्मा इज इक्वल टू 0? इसका मतलब क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0. लेकिन इसको इस साइड में लाएंगे, I4 क्या बनेगा? माइनस, और I5 क्या बनेगा? तो साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ? देखो बेटा, साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन, the currents approaching are taken to be as positive, and currents leaving from the junction are taken to be as negative here. Then their total sum at the junction is equal to 0.
We can take, dear students, this to be as negative, but at that time this has to be taken to be as positive. But better here is that the approaching currents are taken to be as positive and the currents leaving from the junction are taken to be as negative. This is the sign convention. Then and only then their total sum at point O is, this is at point O. At point O at the junction is 0. Hope you have got this. I can make these things clear to you by taking a simple example here like this. See dear students. So this is based on conservation of charge. ये law किस पर based है? This law is based on किस पर है? Conservation of charge. इसका मतलब क्या है conservation of charge? Conservation of charge. That is charge flowing per unit time. That is charge per unit time approaching the junction is equal to the charge per unit time leaving from the junction, because charge per unit time is electric current. Charge flowing per unit time towards the junction is equal to the charge flowing per unit time leaving from the junction, and that is nothing, and that is known as law of conservation of charge. That is, here charge can be neither created nor destroyed, but here charge is transferred from this end to this. जितनी चार्ज यहाँ से आ रही है पर यूनिट टाइम, इतनी चार्ज यहाँ से जा रही है पर यूनिट टाइम, पर नेट चार्ज क्या है यहाँ पर यूनिट टाइम 0. दैट इज नेट करंट. Net sum of the current here is 0, and this is based on the law of conservation of charge. Hope you have got this. This is very important here, dear student. I will make this thing clear by taking a simple numerical here, simple mathematical approach here. These dear students, एक numerical होगा यहाँ. देखो बेटा क्या है, अगर यहाँ से करंट आई 7 एम्पियर, मान लीजिए करंट इज, और यहाँ पॉइंट है और यहाँ गई 4 एम्पियर. बता इस साइड में कितनी जाएगी? ये वो है जंक्शन है, यहाँ ये जंक्शन है. Simple. Because the total current is approaching the junction must be equal to the total current is leaving. अगर ये 4 है तो ये कितनी होनी चाहिए? 3 एम्पियर. क्योंकि तभी जितनी करंट आई, जितनी चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ बेटा अप्रोच हो गई, और इतनी चार्ज पर यूनिट टाइम यहाँ की हो गई, तो ये कितना आना चाहिए यहाँ? ये कितना आना चाहिए यहाँ? दिस मस्ट बी 3 एम्पियर. हाँ, अगर यहाँ अगेन 2 एम्पियर यहाँ इस पॉइंट एनी अदर पॉइंट वुड है, तो पता यहाँ कितनी जाएगी? यहाँ 2 एम्पियर तो यहाँ 1 एम्पियर. क्यों? The current is approaching to the junction must be equal to the sum of the currents leaving from the junction, and total current at this point is 0. It means, see dear students, when steady flow, it is not valid only on the junctions. We can take any point on the wire. If we take any point on the wire, the current approaching is equal to the current leaving. So what is the current at any point, even at a single point, even when it's on a single line, not a junction, even on a single point, the current is for steady flow. The current approaching is equal to current. So what is the net current at any point on the conductor in which there is steady flow of current is also 0. This clear from this junction law. Hope you have got this. Okay, very nice. Now the next law that I am going to discuss here, dear students, is voltage law, and that is very important. This law is used. This law has utility. This law has validity rather, both for open circuits as well as closed circuits. It is used both for open circuits validity है, as well as for closed circuits. दोनों के लिए यूज होगा, चाहे ओपन सर्किट हो या क्लोजर सर्किट हो, दोनों सूत्र में यूज होगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. क्लियर? नो द नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है? देखो बेटे नेक्स्ट क्या है. द सेकंड हियर इज दैट इज लूप लॉ और वोल्टेज लॉ, और इसका दूसरा नाम है वोल्टेज लॉ. ये क्या है लूप लॉ और वोल्टेज लॉ? The first law was related to the currents, but the second law is related to the voltages, potential differences. स्टेटमेंट क्या है इसके लिए? पहले स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट इसके लिए very important. In fact, most of the devices are based on this. The calculation of currents, the calculation of potential differences there in the electrical circuits in current and electricity are based. Can be find out. We can calculate these from using these laws. Okay. Now, what is statement for this? Now, I am taking statement for this. It states that total sum of, according to the algebraic sum of, according to the statement of this law, the algebraic sum of changes in potential, through any closed loop
मैं बताऊंगा लूप क्या होता है, थ्रू एनी क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड सर्किट. Loop is a circuit but closed one. The algebraic sum of changes in potential through any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero. Can I make a statement? The algebraic sum of changes in potential through any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero. ये समझाऊंगा बेटा, समझाऊंगा कि the algebraic sum of changes in potential means potential difference. So the total sum of potential differences through any closed loop involving जिसमें resistors हो and cells in the loop is zero. इस loop में इनका total voltage क्या है? Total sum of voltages, total sum of potential differences, total sum of changes in potential in a closed loop involving resistors and involving cells is zero. I will explain this thing here. But please remember this forever. Forever रखो याद इस law को. This is very important law here. See dear students. तो मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, ये मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, सिग्मा डेल वी मीन्स चेंजेस इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो. यह है स्टेटमेंट किसके लिए, लेकिन इसको समझाएंगे, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, समझाएंगे इसको, फिर न्यूमेरिकल थोड़ा करेंगे तब आपकी क्लैरिटी आ जाएगी. डियर स्टूडेंट्स देखो बेटा, तमाशा देखो कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना बेटा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है. ओके वेरी नाइस. तो बेटा देखो यहाँ बेटा, तो टोटल सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल थ्रू क्लोज्ड लूप मींस क्लोज्ड सर्किट. डियर स्टूडेंट्स, क्लोज्ड सर्किट where an electric current is flowing. See dear students, now see what does this law says. This law says like this. Suppose I am taking a simple circuit here. This is, let us say, positive of the battery, this is negative. I am connecting here a resistor R and connecting this. See here. Let EMF of this cell is E and R is the resistance of the circuit. Now here, the current here, it is clear, it is from positive to the here negative and IC. That is, it goes here in clockwise. Now how I can use now? I can use now to calculating currents or for calculating voltages in the circuit. I can use here Kirchhoff's second law. देखो ये क्या कह रहे हैं, sum of voltages. यहाँ क्या है, एक तो involving EMFs, that is cell, and involving resistors. यहाँ लिखा मैंने total sum of voltage in a closed circuit involving cells and involving resistors. In this closed, total change in voltage क्या आएगी, zero. In fact, this law is based on the conservative nature of electrical forces. Because what is the conservative nature of electrical forces? That is the total change in potential. Total change in potential in a closed circuit is zero. Or total work done per unit charge in taking a charge in a closed circuit is zero. It is based on this. It is based in fact on law of conservation of energy. First law was based on law of conservation of charge, because potential is nothing, it is work done per unit charge. And work is nothing, it is energy. So work done in taking a charge through any closed surface is equal to zero. That is, it is based on law of conservation of energy. See here, now see, आप क्या यहाँ ये कहते हैं ऐसे, ये क्या कहते हैं, टोटल चीज यहाँ क्या पोटेंशियल, आप करंट यहाँ आएगी सपोज आई, तो यहाँ क्या आएगा, वोल्टेज कितनी आएगी, यहाँ V आर आई फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ V इज इक्वल टू आर आई. तो यहाँ कितनी वोल्टेज है बेटा, यहाँ E. लेकिन ये कहते हैं कि इट अकॉर्डिंग टू सम डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब यह है कि E प्लस V मीन्स आर आई इज इक्वल टू जीरो. बिकॉज यहाँ वोल्टेज एक तो इस सेल की वजह से वोल्टेज, दैट इज ईएमएफ, और इस रजिस्टर की वजह से वोल्टेज, यहाँ ड्रॉप नहीं हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि दीज आर कंडक्टिव वायर्स. ओनली ड्रॉप here is drop of voltage, but here is gain of voltage when it goes from negative to positive. One thing I will make you clear. एक चीज याद रखते हैं,
चलो ये है a plus r is equal to, but this is not sufficient here. This is not sufficient. We have to follow here sign conventions. We have to follow here sign conventions. What are sign conventions, dear student? See. याद रखो सेल में. If you are moving in the circuit and are going from negative to positive, then take this EMF to be as positive. देखो अगर आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ सर्किट में जा रहे हैं, ऐसे देखो. So, मैंने यहाँ लिखा एक पॉइंट A और यहाँ मैंने सेल और यहाँ और B पॉइंट. अगर if you are going from point A to B, let it is EMF is E. तो इसका क्या आएगा, इसका ये लेना है. If you are going from A to B, आप लेंगे VA. इसका when you are going from negative to positive, you are going from increasing potential. Take potential of this cell to be as positive. और बेटे ये किसके बराबर आएगा फाइनली यहाँ VB. Because when you are going from A to B, you are going in the cell, you are going from increasing potential. तो इसका क्या EMF लो प्लस E, तो फाइनली किसके बराबर आएगा. तो बताइए VB माइनस VA, VB माइनस फाइनल माइनस इनिशियल किसके बराबर आया. फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ लेंगे तो ये E के बराबर. तो EMF क्या है यहाँ पॉजिटिव ले लो. कब पॉजिटिव? when you are going from negative to positive. But when you are going from dear students, when you are going from, suppose ये बेटे यहाँ है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, you are going from पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो EMF क्या है? VA लिखो. लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, बिकॉज this has more potential, this has less potential. You are going from high potential to low potential, that is you are going in the direction of decreasing potential. तो इसका माइनस E ले लो. माइनस E is equal to VB. Potential of V is VB, at point B is VB, and potential at point A is VE. तो क्या आएगा बेटे? VB माइनस करो VE. तो यहाँ इसका EMF क्या ले लो? माइनस E ले लो. इसका ले लो यहाँ माइनस. when you are decreasing, ये याद रखना. दिस इज साइन कन्वेंशन इन द किरचॉफ्स लॉ. और रेजिस्टर के लिए क्या याद रखना, क्या सेल के लिए? इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इसका ईएमएफ ले लो पॉजिटिव, ये ले लो इसका पॉजिटिव. और इफ यू आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका क्या ले लो बेटा? नेगेटिव, बिकॉज मैंने समझाया आपको यहाँ. अक्रॉस रेजिस्टर क्या है? अगर रेजिस्टर है, ये देखो ये रेजिस्टर है. If current is going like this is point A and this is point B, this is current here, current direction of current. Now if you are going from A to B along the direction of current, that is VA, here current always flows from a point high to low. तो यहाँ वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? वोल्टेज डिक्रीज. तो यहाँ ले लो माइनस IR, वोल्टेज अक्रॉस दिस इज I into R minus IR is equal to VB. तो पता है VB minus VA, that is potential difference between the 2 points, that is potential drop across this, वो किसके बराबर आएगा? माइनस IR. So when you are traversing in the direction along the direction of the current, then at that time take voltage to be as negative. अगर आप इसी में देखो बेटे, याद रखो, अगर इसी सर्किट में आप ऐसे देखो, अगर मैंने A पॉइंट यहां ले लिया और ये ऐसे ले लिया, और इफ यू आर गोइंग फ्रॉम A to B, बट यहां क्या है? करंट यहां आ रही है फ्रॉम B to A, बट यू आर ट्रैवर्सिंग फ्रॉम A to B. तो इस वक्त क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे इस वक्त बेटा? इस वक्त क्या लिखोगे इसके लिए? इसके लिए लिखोगे VA पोटेंशियल एट पॉइंट A इज दैट VA और पोटेंशियल एट पॉइंट B इज दैट VB. तो V यू आर गोइंग इंक्रीजिंग, क्योंकि करंट यहां आ रही है, बट आपका करंट यहां आ रही है ना. देखो करंट, यह करंट इज दिस डायरेक्शन, लेकिन बट यू आर गोइंग दिस डायरेक्शन. If you are going from A to B, you are going from this point to this, that is increasing potential, because current flows from high to low. So when you traverse from A to B, साइन कन्वेंशन देने के लिए जब आप चलोगे ना A to B, तो आप क्या? You are going from, तो यहां लिखेंगे आप प्लस आया is equal to VB. तो VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल किसके बराबर आएगा? आया. तो एट दैट टाइम इसकी वोल्टेज ले लो पॉजिटिव. देखो समझाऊंगा एक बार फिर समझाऊंगा. ये थोड़ा टफ है, इतना टफ नहीं है, लेकिन समझ लो. अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे बेटा. न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स 0 आएंगे आपको. मैं उसी के साथ कहता हूं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा. जबरदस्त पॉइंट है ये. देखो आपके टोटल सम ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए इसमें? 0. बट अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन लेने के लिए, सपोज यहां बेटा लिखूंगा, तो टोटल सिग्मा V, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दैट इज टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस कितना होना चाहिए? 0 अलोंग दिस क्लोजर लूप. आप इस क्लोजर लूप साइन के लिए चाहे आप क्लॉकवाइज चलो बेटा, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, नो प्रॉब्लम साइन देने के लिए. ये तो आपको पता है कि करंट ऐसे चल रहे हैं, लेकिन आप
क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉक? मम आप ही बता, क्या बेटा बता, क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉक? चलो क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन के लिए। देखो क्लॉकवाइज, आप देखो क्या यहां स्टार्ट हो जाए, यहाँ इसका पॉइंट ए ले लो, इसको बी कहो और इस पॉइंट को सी और बेटे इसको डी। स्टार्ट फ्रॉम ए एंड गो एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में गए आप? नहीं एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी है? साइन के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए क्या जा रहे हैं इस वक्त? क्लॉकवाइज। क्या जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। बता टोटल वोल्टेज क्या है? यहां वोल्टेज कितनी है? ई। और यहां कितनी है जब करंट फ्लो होती है? आई आर इज इक्वल टू 0। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू until you will not follow साइन कन्वेंशन। हमको साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब जाओगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां जब आप पहले यहां देखो ए से स्टार्ट करो, ए से बी और बी से सी। When I am going from B to C, you are going in the direction of current. When you are going in the direction of current, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पोटेंशियल कम, तो you are going from decreasing potential, तो इसकी पोटेंशियल ले लो नेगेटिव साइन कन्वेंशन के लिए, तो इसकी क्या लेंगे? माइनस आया। और यहाँ जब सी टू बी, क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंडक्टिव वायर है, यहाँ यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन कन्वेंशन देने के लिए, यू आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, तो इसकी ले लो क्या? पॉजिटिव, इसकी प्लस ई ले लो, तो बेटा क्या आया? 0। लेकिन इस वक्त किस डायरेक्शन में आप गए? क्लॉकवाइज। देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो यही रिजल्ट आएगा। लेकिन याद रखना इंक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए नेगेटिव, और इंक्रीजिंग पोटेंशियल सेल के लिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीजिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या है? व्हेन यू गो फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन व्हेन यू गो फ्रॉम लो टू हाई देन इट इज इंक्रीजिंग, बट व्हेन वी गो फ्रॉम हाई टू लो देन इट इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव ले लो इस वक्त। देखो आप इसी को सॉल्व करेंगे, आप यही सर्किट ले लो, यही सर्किट लेंगे। देखो बेटा ये ले लिया मैंने, ऐसे देखो ये मैंने ले लिया, ये ई है और ये आर है। आपको पता है कि करंट यहां आ रही है, कभी करंट भी नहीं होती है, कभी करंट भी नहीं दी गई होती है, लेकिन पहले हम करेंगे ना सिंपल, वी विल गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे बेटा, तो देखो क्या यहाँ करंट है, यहाँ करंट है। और इसी को पहले मैंने क्लॉकवाइज, आप क्या जाएंगे? बताओ, यहाँ क्लॉकवाइज था, आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्या जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। सेम रिजल्ट आएंगे। साइन कन्वेंशन के लिए आप कहां जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये बेटा ए, मान लो ये बी, ये सी, ये डी, अब यहां जाएंगे ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी, देन डी। बताओ यहां क्या? व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन के लिए आप कहां जाओगे? साइन कन्वेंशन देने के लिए। साइन कन्वेंशन देखिए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या लोगे? देखो अब ए टू बी जा रहे हैं, देखो ए टू बी, यहां क्या है बेटा? प्लस, यहां माइनस, ये प्लस, यहां यू आर गोइंग डिक्रीजिंग, तुम माइनस ही ले लो। क्या ले लो? When you are going from A to B, you are going across the cell in the decreasing potential because from high to low. जब यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो कम हो रहा है ना इसका पोटेंशियल, तो नेगेटिव ले लो, इसका ये नेगेटिव ले लो एज पर साइन कन्वेंशन। और यहाँ कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि करंट यहाँ जा रहे हैं, यहाँ करंट हमेशा फ्लो हो रही है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन साइन देने के लिए जब आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू, यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, यू आर गोइंग फ्रॉम एल टू हाई। तो क्या लेंगे आप यहाँ बेटा? आप लेंगे प्लस आया, because increasing you are going from low to high, that means you are increasing, you are going from increasing potential। यहाँ ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ इंक्रीज पोटेंशियल हो रहा है। अगर यहां से यहां तक जाओगे तो ड्रॉप हो रहा था, लेकिन अगर यहां से यहां तक जा रहे ड्रॉप नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है पोटेंशियल, यहाँ गेन हो रहा है पोटेंशियल, यहाँ क्या हो रहा था? ड्रॉप पहले के लिए, तो इसलिए आपने नेगेटिव ले लिया था। लेकिन दूसरे के लिए क्या लेना बेटा? पॉजिटिव आया इज इक्वल टू 0। तो ये और ये सेम, बिकॉज अगर इसको आप नेगेटिव के साथ ज़ारा करोगे प्लस, तो ये माइनस आएगा तो 0, एंड दिस एंड दिस इज सेम, बट यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। सेम आ गए ना, चाहे क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, लेकिन एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग अक्रॉस द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, 0 माइनस ले लो, बट इफ यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन गेन इन द इंक्रीज इन द पोटेंशियल, देन ई ले लो पॉजिटिव। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, that is sorry from high to low, then drop potential, तो potential across लिखो माइनस आया। but if you are going from low to high, gain हो रहा है potential, तो आया लिखो पॉजिटिव। these are the sign convention, it depends upon you whether you will go clockwise or anti clockwise। hope you have got this was very important question here dear students। okay थोड़ा बढ़ाएंगे लेवल, बढ़ाएंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा, लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे एक और क्वेश्चन। देखो क्या है, लेंगे क्वेश्चन, देखो बेटा क्या है। सपोज मैं यहां सर्किट, एक और सर्किट लूंगा क्लोजर सर्किट के लिए। देखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ
is based on law of conservation of energy. देखो क्या है, actually total change in potential when where you are starting from, if you go around a closed path and then come back to the same point. Potential is a point function. It depends upon the point. When you go from initial to final and reach the same point, then what is the net change in the potential? What is the net change in the work? What is the net change in the work done per unit charge in circling this charge and reaching to the same point? That is zero. No work done, no energy consumed. So no potential change. And that's why it is based on the conservative nature of law. It is based on the conservative nature of electrostatic forces or electrical forces. Hope you have got this. It is very very important point here, dear students. See here. Now आप क्या करेंगे? देखो बेटा, आप देखो तमाशा क्या है, देखो तमाशा क्या है. एक और लेंगे ना, याद रहा? नहीं रहा याद, नहीं रहा याद. ये लिख के रखो. देखो एक और एक कॉम्प्लिकेटेड. लेट अस गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ लिखेंगे एक बेटा, एक और सर्किट. मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ ऐसी, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ भी रजिस्टर है, और ऐसे लिखा मैंने, ऐसे यहाँ भी यहाँ एक और सेल. देखो बेटा, यहाँ एक और सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो यहाँ एक और रजिस्टर ऐसे मैंने लिखा. यहाँ ए बी, इस पॉइंट का बी, सी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है डी, और ये पॉइंट है ई, और ये पॉइंट है एफ. इसका है E1 EMF और इसका E2 है, और ये रजिस्टर है, इसका नाम है R1 और इसका नाम है R2, और इस रजिस्टर का नाम है R3. सपोज यहां से करंट है. अरे देखो बेटा, करंट यहां मैं देता हूं, लेकिन क्वेश्चन में करंट नहीं दी गई होती है. वहां आर्बिट्री चूज करना पड़ता है, वहां आर्बिट्री चूज करना पड़ता है यार. यहाँ पहले जाएंगे ना, वी हैव टू गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना लेवल. लेकिन फिलहाल याद रखो, ये करंट भी नहीं दी होती है ना न्यूमेरिकल्स में, जो जेई में आते हैं, जो नीट में आते हैं. लेकिन पहले करेंगे ना, थोड़ा समझ लो, समझने की कोशिश करो. लेट अस सी करंट हियर इज लाइक दिस, फ्रॉम दिस दैट इज I2, और इसे करंट यहाँ जो ड्रा होती है, लेट अस दिस इज I1. यहाँ दोनों I1 आ रहे हैं, यहाँ I1, यहाँ I2. लेट अस यहाँ क्या जा रहे हैं, I3. दैट I3 इज I1 प्लस I2. आपको आई बात समझ में? हाँ. तो यहाँ जाएगी I2, और अगेन यहाँ क्या आएगी, I1, और यहाँ क्या आएगी, अगेन यहाँ आएगी I2 आएगी. लेकिन यहाँ क्या जाएगी, I1. देखो बेटे के, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखो बेटे के, आप क्या करेंगे, अब छोड़ दो इसको. आप क्या करना, टोटल नाउ हाउ मेनी लूप्स आर हियर. दिस इज वन लूप, ये बेटे सेकंड लूप, और ये सारा का सारा 3 लूप्स है. यहाँ कितने लूप्स है, कितने क्लोजर सर्किट्स है यहाँ. लेकिन पहले मैं ये लूप लूंगा. चलो एक बड़ा लूप लो, ये ACDE ले लो. क्या ले लो, लूप. कौन सा लूप, कौन सा क्लोजर सर्किट लूप, ACDE. ए यहाँ ये भी लिखना था, ये भी लिखना था. क्या लिखना था, ABCDEF, ABCDEF और A क्लोजर लूप. आप देखो, आप क्या है, टोटल सम ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज क्लोजर लूप. करो क्लॉकवाइज स्टार्ट करो या एंटी क्लॉकवाइज. चलो जाएंगे, इसमें जाएंगे बेटा, क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. क्या जाएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू. एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज. यहां से स्टार्ट करो ए से स्टार्ट, ए से स्टार्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज जाओ. ये है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहां और यहां ये एंटी क्लॉकवाइज जाओ. ए बी ये कंडक्टिव वायर है, नो पोटेंशियल ड्रॉप. यहां इसका ईएमएफ क्या, E2, बट यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू. तो इसका क्या ले लो, माइनस, बिकॉज डिक्रीजिंग पोटेंशियल, decreasing EMF, because you are going from high to low. तो you are, when you cross this you are going from high to low. तो माइनस ले लो इसका, माइनस E2. अब यहाँ करंट कहाँ आ रही है, यहाँ करंट आ रही है I2. And current always flows from high potential to low. तो you are going from increasing gain in potential, from low potential to high potential. तो gain in potential तो पॉजिटिव ले लो, पोटेंशियल ड्रॉप वो किसके बराबर आएगा, I2 into R. तो प्लस ले लो I2 into R2. ये R2. अब यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंडक्टिव वायर है. यहाँ करंट, करंट कहाँ जा रहे हैं, यहाँ I1, यहाँ जा रही है I1. एंड यू आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो. व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो तो डिक्रीज हो रहे हैं ना पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल. तो डिक्रीज, माइनस ले लो, माइनस I1 R1. यहाँ क्या, यहाँ जाके फ्रॉम लो टू हाई, दैट इज इंक्रीजिंग गेन इन
EMF, gain in EMF because you are going from low to high. तो plus ले लो, plus E1 is equal to 0. This is here Kirchhoff's law. This is here Kirchhoff's law. लेकिन मैं क्या गया एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई बेटे इसको क्लॉकवाइज जाएगा यही रिजल्ट आएगा, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो यही आएगा। चलो जाएंगे आपकी खातिर जाएंगे, क्या जाएंगे क्लॉकवाइज। देखो बेटा क्लॉकवाइज, बता क्लॉकवाइज अगर जाएगी इस सर्किट को कहां से, यहां से यहाँ क्या आएगा माइनस, क्लॉकवाइज सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन साइन कन्वेंशन याद रखना। जहाँ A2 यहाँ क्या आएगा बेटा, ये आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज जाना, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, कोई क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन साइन कन्वेंशन क्लियर होनी चाहिए। तो जाओ क्लॉकवाइज बेटा। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या करोगे आप, बता क्या करोगे, बता डियर स्टूडेंट्स, बता डियर क्लॉकवाइज यहाँ क्या आएगा प्लस, इसी किसमें क्लॉकवाइज, इसी कौन सा लूप है, यही लूप है पहला वाला लूप। तो पहले यहां जाएंगे तो क्या आएगा माइनस E1। क्यों माइनस E1, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो। यहां क्या आएगा, यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन, यहां गेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गेन, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई। तो प्लस आया, प्लस I1 R1। इसके बाद कहां जाओगे, यहाँ यू आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, तो दिस इज माइनस I2 R2 माइनस I2 R2। तो इसके बाद यहां जाओगे, यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, तो प्लस लेना, प्लस E2 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा अगर इसको माइनस के साथ जरा दोगे तो यही आएगा रिजल्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव बाय माइनस, तो क्या आएगा, प्लस E1 माइनस I1 R1 माइनस प्लस I2 R2 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। सेम रिजल्ट्स, बट you have to remember here sign convention. Okay, you have got this. Now dear students, now let us solve here numerical. Dear students, अब numerical solve करेंगे। देखो बेटा देखो न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल करेंगे इस रिलेटेड टू दिस, जल्दी करेंगे, घर में करो लेकिन ट्राई करेंगे। देखो बेटा क्या है, यहाँ मैंने एक क्लोजर सर्किट ले लिया, देखो ऐसे किया ना, एक और ऐसे, और यहाँ ले ली एक ऐसे और ऐसे ले लेना, यहाँ ऐसे, let us dear students take there his as 4 ohm लो, यहाँ 4 ohm, यहाँ ले लो 2 ohm, और यहाँ ले लो बेटा 2 ohm, और यहाँ ले लो 4 ohm। लेट अस हियर 2 वोल्ट ये बैटरी है, और इसकी ले लो 4 वोल्ट, और इसकी बैटरी क्या ले लो 6 वोल्ट। देखो क्या है, यहाँ मैंने एक सर्किट दे दिया है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, हियर इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कितनी यहाँ सेल्स हैं, एक सेल का क्या है 2V, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, लेकिन इसका यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव 4 वोल्ट, इसका यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव 6 वोल्ट। ये रजिस्टर कितने हैं 4 ओम्स, ये रजिस्टर 2 ओम्स, ये कितना है 4 ओम्स, ये कितना है 2 ओम्स। यहाँ क्या मालूम करो, फाइंड इफ, अगर ये है फाइंड, करंट तो दी गई नहीं है बेटा, कहाँ करंट है, करंट कहाँ ढूंढोगे, क्या करोगे इसके लिए। ये क्वेश्चंस आते हैं जेई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, चेक हो रहा है ना माइंड बच्चों का कि क्या इनको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, कहाँ करंट है, क्या करोगे इसमें मैंने करके। जब बेटा ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये और ये जंक्शन है, जब आपको जंक्शन पर करंट मालूम ना हो, डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त क्या करो, इसकी पोटेंशियल हाई मान लो, क्या मान लो, इसकी पोटेंशियल हाई मान लो, क्या मान लो, इसकी पोटेंशियल हाई मान लो। देखो बेटे क्या है, ये पता नहीं है, लेकिन आप क्या है करंट थी, यहां हाई पोटेंशियल मान लो, V को हाई पोटेंशियल मान लो, हाई पोटेंशियल, V को क्या मान लो, हाई पोटेंशियल। ये नीट और जेई को क्वेश्चन है, अगर कम समझ में आएगा लेकिन रिपीट करो और रिवाइज करो, और मुझसे और नेक्स्ट टाइम मैसेज करो कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो रिपीट करेंगे नहीं क्वेश्चन, लेकिन समझ लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां देखो क्या है, ये भी हाई पोटेंशियल है इसका,
तो करंट कहाँ है, हमको करंट तो पता नहीं है कि कहाँ जाएगी, क्या इससे कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इससे यहाँ आएगी, ये कहाँ जाएगी, चलो यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ, क्या यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, पता नहीं है, पता नहीं है। चलो आपकी खातिर देंगे करंट की डायरेक्शन। मान लो ये है यहाँ, यहाँ I1 है, यहाँ I1, इसे I1 और इसे यहाँ के I2, आपकी खातिर, अदरवाइज नहीं देना था। मान लो कि यहाँ कितनी जा रही है I, अदरवाइज ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है ना, ये भी नहीं। लेकिन आप चलो आपकी खातिर, क्योंकि लेट अस गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसके बैच आएंगे ना बी हाइट पोटेंशियल, वो भी दिखाएंगे आपको, वो ऑटोमेटिकली फिर नेगेटिव पॉजिटिव आता है। लेकिन चलो आपके लिए, आप ये I1 बेटा, ये क्या है, मान लो इसे I2, तो यहाँ क्या चलेगी I1, और बेटा यहाँ क्या चलेगी, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ, मान लो ये I2 है, यहाँ भी I2 है, यहाँ क्या जाएगी, ठीक है ना, यहाँ I3 जाएगी, यहाँ इसमें I3 जाती है इस ब्रांच पे। तो अब क्या मालूम करो, फाइंड इफ दिस इज फाइंड बेटे, क्या करो, I1, I2 एंड I3, क्या करोगे, यूज व्हाट लॉ, किरचॉफ लॉ। अब किस लूप पे, यहां लिखो बेटा आप। अब यही क्वेश्चन, इसी का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे बेटा, देखो क्या है, यहां लिखेंगे बिल्कुल यही, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बेटे कितने ओम्स, 4, और ये कितना है 2 ओम्स, ये 4 ओम्स, यहां कितना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, देखो ये कितने हैं 2 वोल्ट्स, ये कितने हैं 4 वोल्ट्स, ये कितने हैं 6 वोल्ट्स, ये कितने हैं 4 ओम्स, 2 ओम्स, और ये कितने हैं 2 ओम्स, ये कितने हैं 4 ओम। देखो बेटा क्या है, देखो कैसे करेंगे आप। अब यहाँ करंट क्या है, यहाँ करंट है, ये भी चलो, ये भी दी गई है, अदरवाइज ये नहीं होती है, I2, और यहाँ कितने हैं I3, निकालो, ट्राई कर लो। इसका लिखेंगे बेटे यहाँ A, यहाँ इस पॉइंट को लिखेंगे नाम B, और इसका क्या लिखेंगे C, और इसका क्या लिखेंगे D, और इसका क्या लिखेंगे E, और इसका क्या लिखेंगे F। तो मैंने अब ये छोड़ दिया, कि हाई पोटेंशियल ले लो, वो बाद में बताएंगे कि हाई पोटेंशियल जब किसी जगह डायरेक्शन, किसी जंक्शन पर डायरेक्शन मालूम ना हो, तो इस जंक्शन को हाई पोटेंशियल मान लो, और वहीं से करंट यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, इन ऑल द सेम डायरेक्शंस, ऑल्दो द सम आर एंटरिंग, सम आर लीविंग, लेकिन आप सभी बेटा, आप सभी की डायरेक्शन जो है ना, द डायरेक्शन शुड बी आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ऑटोमेटिकली जब न्यूमेरिकल करोगे तो अगर एरो का आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बाद में दिखाएंगे वो, इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सिंपल तरीके से ऐसे दिखाएंगे। देखो बेटा क्या है, देखो बेटा, सी डियर दिस कैसे आएगा, बताओ क्या करोगे। पहले ले लो लूप, कौन सा लूप, A B C, A B E F, A B E F, क्या करेंगे आप इसमें, बताओ जल्दी करो, बताओ एंटी क्लॉकवाइज जाओगे या क्लॉकवाइज, आप भी बताओ, क्लॉकवाइज जाओगे या एंटी क्लॉकवाइज, चलो जाएंगे क्लॉकवाइज, क्या जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ऐसी क्लॉकवाइज है ना, ऐसी इसमें जाएंगे। देखो बेटे क्या है, कहां से स्टार्ट होगी, A से टू B, यहाँ करंट है ना, यहाँ डिक्रीज, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो, तो माइनस ले लो, -4 इंटू I1, मैंने मान लिया ना करंट इसमें I1 है, क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ले लो नेगेटिव, बिकॉज देयर इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, तो माइनस ले लो। यहाँ क्या है बेटा, I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ I3 है, लेकिन यहाँ क्या है, यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इसकी ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट, तो बेटे ये पॉजिटिव, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई इंक्रीजिंग, तो इसका +4 भी ले लो, 4 ले लो। तो यहाँ आप आ जाओ, यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं कोई, लेकिन यहाँ क्या जा रही, करंट क्या आ रही है, यहाँ ऐसे आ रही है, यहाँ का तो I1 ऐसे आ रहा है। Again you are going from high to, because current ऐसे आ रही है, now when you are traversing you are going from high to low, तो डिक्रीज, तो ले लो -2 ohms, लेकिन -2 यहाँ वोल्टेज क्या आएगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर आएगी, -2 इंटू I1, और यहाँ क्या, यहाँ यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, तो यहाँ क्या आएगा +2 इज इक्वल टू 0, टोटल सम ऑफ वोल्टेज। तो बेटे कितना है यहाँ, -4 I1 +4 -2 I1 +2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, -4 एंड -2 दैट इज -6 I1 +4 +2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0, तो ये किसके बराबर है, -6 I1 इज इक्वल टू -6, तो I1 किसके बराबर है, I1 बेटा I1 आएगा माइनस कैंसिल, 6/6, तो 6/6 1 एम्पियर, कितना आ गया, तो क्या है I1, देयरफॉर वी हैव कैलकुलेटेड हियर I1 डियर स्टूडेंट्स, I1 किसके बराबर है, I1 हियर इज 1 एम्पियर,
कैन यू फाइंड आउट दिस? यू कैन फाइंड आउट दिस। चलो कर लो फाइंड बेटा, कर लो। किस लूप में? अब I2 निकालने के लिए I2, फिर आपको पता है ना किस नाम आप 3 करंट इज इक्वल टू 0 एंड यू कैन फाइंड I3। नो I2 के लिए, चलो I2 के लिए, I2 फाइंड करने के लिए कौन सा लूप? यहां ले लो B C D E B, B C D E B। बताओ क्लॉकवाइज है? चलो क्लॉकवाइज जाएंगे। पहले के लिए क्या गए थे? पहले के लिए भी क्लॉकवाइज, अब दूसरे के लिए भी क्लॉकवाइज। तो यहां से जाओ, यहाँ I2 आ रहे, यहाँ भी I2 है, यहाँ भी क्या है बेटा? ये I2, क्योंकि करंट ऐसे आ रहे हैं, I2 है यहाँ। आप जाओ यहाँ, जब यहाँ से यहाँ तक यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? वोल्टेज ड्रॉप करंट इनटू यहाँ ये आएगा प्लस I2 प्लस 2 इंटू वो रेजिस्टेंस इंटू करंट है, वही वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, गेन इन वोल्टेज, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई। एंड यहाँ क्या जा रहे हो? फ्रॉम हाई टू लो, तो यहाँ क्या आएगी? डिक्रीज, माइनस ले लो यहाँ, -6, क्योंकि यू आर गोइंग इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे, यहाँ अगेन इंक्रीजिंग, because this is low, this is high, current flows from high to low, but you are going from low to high, तो क्या 4 into I1, that is resistance into current is voltage, plus 4 into I2 is equal to, हाँ यहाँ होगी, यहाँ जब जाओगे ना, यहाँ कहाँ जाओगे? हाई टू लो, तो ये लेना -4 volts is equal to 0, -4 from high to low, तो क्या है? ये आया 0। तो बेटा देखा क्या है यहाँ? is equal to यहाँ 4 plus 6 2I2 -6 plus 4 -10 is equal to 0। तो पता I2 किसके बराबर आएगा यहाँ? I2 6I2 is equal to 10, तो I2 किसके बराबर आएगा? 10/6, 2 3s are 6, 2 5s are 10, तो ये किसके बराबर आया? 5/3 एम्पियर। तो कितना आएगा यहाँ? 5/3, यहाँ 5/3। तो बता बेटा ये I3 किसके बराबर आएगा? दिस I3 is equal to, because current is approaching are equal to current is leaving, that is I1 plus I2। तो बेटा I3 कितनी है? I3 भी पता है, I2 भी पता है, ये 1 है, पहले में 1 आया था, तो ये कितना है? 5/3। बेटा बता ये किसके बराबर आएगी? यहाँ आएगी 3 1 3, 3 and 5 3 go 8/3 एम्पियर। So what is I3? I3 is 8। I have got this. Inshallah I will meet you next time. Till तो may Allah bless you। ये थोड़ा टफ है, लेकिन ट्राई करो, जितना ट्राई करो, बहुत ज्यादा ट्राई करो, इंशाल्लाह आसान लगेगा। Inshallah I will meet next time. Till तो may Allah bless you। Nice day ahead. Okay।